Hello, good morning everyone, good evening, good afternoon. It's depend upon you when you watch my video. So student, in previous video we have done about revision sheet seconds. In this revision sheet we discuss about only basic you can say fundamental units of chapter first, chemical reaction and equations. In this video we discuss about type of chemical reaction. It is a most important topic, and in every year CBSE asks 2 or 3 questions on same topic, and maximum question 5 marks or 2 marks questions. Okay, so not 2 marks, 3 marks question. But when you open your unsolved paper, when you watch CBSE board paper, then you found lot of question which is based on these topics. So what is the meaning of type of chemical reaction and which type of reaction we read here or we discuss here? So let us start this video. But before starting this video, I request to you, if you all are new or if anyone new on this chapter, on this topic, then you need to watch previous video. And one more things, if you new on my channel, then please subscribe it and on bell icon. Okay, let us start this video. Before starting this video, I want to say don't skip any step, otherwise you not able to decode my topic, not able to solve question which is based on type of chemical reactions. There is a lot of type of chemical reaction, but in this topic we discuss about only 2 or 3 type of chemical reaction, because if I discuss all type of chemical reaction then video will be very long, so you not take interest in this video. So I bifurcate this topic in several steps or several units, so one by one I decode every topic, but today I discuss about few topics. Okay, let us start. So first is combination reaction and second is decomposition reactions. What is meaning of combination reaction? It is a type of chemical reaction in which 2 or more than 2 reactant combine and form single product. Suppose it is marker. It combine with ink, form plastic, and it's one more things point. So these are component of this marker. So but when we combine all the component, then we get a marker. Got it? It means if you take lot of reactant, you can say 2 or more than 2 reactant, and combine each reactant and form single product, then you say it is type of combination reaction. समझ में तो आ गया होगा? मतलब कि जब एक से अधिक कोई भी रिएक्टेंट हो, वो आपस में कंबाइन करके क्या बना रहा हो, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा हो, तो आप उसे बोलते हैं ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. ठीक है. और आपको एक अच्छी बात क्या बताएं, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है ये सब की सब क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. अगर आपको एक्सोथर्मिक के बारे में नहीं पता है तो हम थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं. देयर इज 2 टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज बेस्ड ऑन हीट मीन्स एनर्जी. इफ इन एनी रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब, देन वी से इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. कोई भी रिएक्शन अगर उसमें उष्मा को, हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है या फिर दिया जा रहा है, आप कह सकते हैं दिया जा रहा है, तो क्या होगा, वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा. ठीक है. उसका अपोजिट कर लेते हैं. अगर कोई रिएक्शन हो रही हो और उससे हीट निकल रहा हो तो आप कहेंगे यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. मीन्स यू कैन से सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट रिलीज और एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. हिंदी में कहते हैं उष्माक्षेपी और एंडोथर्मिक को कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया. गॉट इट? बहुत ही सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा. पहले हम लोग ओरली डिस्कस कर लेते हैं, फिर बोर्ड पर आते हैं. जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगी वो क्या होगी, एडिशन रिएक्शन. देखिए भाई, सब नाम ही बता रहे. एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़ना, कंबाइन करना. सो यू कैन से सच टाइप ऑफ रिएक्शन, सॉरी नॉट एडिशन, decomposition reaction. I discuss in just after decomposition addition reaction. So first I discuss about decomposition reaction. What is meaning of decomposition reaction? I think in biology portion you know decomposer.
कुछ फंगस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज कराते हैं ना। तो ये डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? एक्चुअली डिकम्पोज का मतलब होता है विखंडन, टूटना, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाना ना। और एक तरह से अगर आप कहें बायोलॉजी की भाषा में इसका मतलब होता है सड़ना। सड़ना समझते हैं ना, खराब हो जाना ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इनटू टू अ मोर देन टू प्रोडक्ट। एक कोई सिंगल रिएक्टेंट होगा, जैसे यही मार्कर ही समझ लीजिए। अब इसको हम तोड़ डालें छोटे छोटे पार्ट में, जितने कंपोनेंट सब में अलग कर दें, ये क्या होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और सोचो कि अगर आप कोई डिश बना रहे हैं, डिश खाने के लिए खीर बना रहे हो, तो जब तक कि आपके राइस, शुगर, मिल्क अलग अलग थे, ड्राई फ्रूट अलग अलग थे, तब तक तो ये क्या थे? उनके कंपोनेंट थे। लेकिन जैसे ही इन सबको मिला के आपने खीर बना दिया तो आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया ना। क्या बोला उसको आपने? खीर बोला। तो अगर कोई रिएक्शन उसमें कोई कंपोनेंट अलग अलग है और मिल करके क्या बना दिया? सिंगल बना दिया, तो आप उसे क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अगर कोई एक प्रोडक्ट है या फिर आप रिएक्टेंट ही कह लीजिए, उसके सारे कंपोनेंट को फिर से आप अलग अलग कर दीजिए, तो क्या बोलते हैं इसको? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले हमने आपको पहले ही बता दिया एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये अच्छी बात क्या है, अगर आपको भूल जाए तो जो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हम उनके एग्जाम्पल लिख देते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये आपका एग्जाम्पल होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, पहचानने का तरीका भी बता दूंगा, कैसे आप पता करेंगे। और इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, उन सारे क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। चलिए तो हम आते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट पे, जो क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये हमारा आज का पहला टॉपिक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि सपोज कर लीजिए कोई कंपाउंड था A + B + C, ये क्या थे? हमारे सबके सब रिएक्टेंट। ये कंपाउंड मिल करके बना लिया सिंगल प्रोडक्ट, क्या बनाया? D। तो ये क्या थे? रिएक्टेंट थे ना, समझिएगा, रिएक्टेंट। और ये क्या है? प्रोडक्ट। पर ये देखिए रिएक्टेंट क्या थे? एक से अधिक लोग थे, प्रोडक्ट क्या है? सिंगल है। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन होगी जिसमें रिएक्टेंट एक होगा और वो क्या करेगा? मिल करके कोई सिंगल प्रोडक्ट बना रहा होगा, तो उसे आप क्या बोलते हैं? ये एग्जाम्पल है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। चलिए इसको अपनी केमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका हम लोग रिएक्शन करा देते हैं वाटर से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चूना। चूना आप जानते हैं, आपके घर पे जो लोग खाते हैं, वाइट वॉशिंग के लिए भी आता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चूना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम। ये तो आपको पता ही हुआ क्या है? वाटर है, पानी भाई साहब। जब हमने कभी भी चूने को, अगर आपने देखा हो घर पे दादी माँ होंगी चूना पकाती होंगी खाने के लिए, तो जब वो पानी में चूने को डालती हैं क्या होता है? याद करके बताइए अगर आपको याद हो तो। जब वो चूने को इसमें डालती है ना, ये उबलना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? उबलना। और क्या निकलती इससे? हीट निकलती भाई साहब। अगर हीट निकल रही है, हमने तो बताया आपको, अगर हीट निकल रही है, एनर्जी रिलीज हो रही थी, रिएक्शन कैसी होगी? ऑलरेडी एक्सोथर्मिक होगी। तो चलिए पहले इस पे देखते हैं कि ये एक्सोथर्मिक है, साथ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कैसे। तो चलिए कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, मतलब हमने जब चूने को इस पानी में डाल दिया तो ये प्रोडक्ट बना लेता है। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैसा होता है? एक्वस। और प्लस साथ में इसके क्या निकलती है? हीट निकलती है, आप एनर्जी कह सकते हैं। अब इसको हम लोग बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम, मतलब कि बुझा चूना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव लाइम, क्विक लाइम। ये तो जागता हुआ भाई सब होता है। आपको बता दें, अगर आप इसे मुट्ठी में लेके पानी में हाथ अपना डुबा देना है तो सब आपके हाथ में छाले पड़ जाएंगे, इतनी ज़्यादा हीट निकलती। पानी आपका ठंडा होता है, इसके बाद भी क्या होता है? बॉयल करने लगता है। तो सोचो कितनी हीट निकलती होगी ना। अगर हीट निकल रही तो क्या है? रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है।
चलिए अभी इस रिएक्शन की कहानी क्या है, सीबीएसई ने तो भाई साहब इन्हें 7 से 8 बार पूछा है, तो हम आपको ऐसा समझाते हैं कि फिर से सीबीएसई पूछे तो आप उसको मुँह तोड़ जवाब दे पाएँ, मतलब कि अपना क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करके आएँ, ये ना कि मुँह लटका के आ जाएँ, अरे यार कभी तो पढ़ा था कैसे कैसे, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप इस कहानी को सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। भाई साहब हमने कहा ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, क्विक लाइम, कॉमन नेम, और अगर केमिकल नेम बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर है। ठीक है, और ये क्या है, स्लैग्ड लाइम, इसको केमिकल नेम है, इसके बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या थी, हीट निकल रही थी। अब ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन है कि नहीं चेक कर लेते, रिएक्टेंट एक इधर एक इधर, प्रोडक्ट कितना बना, सिंगल, इसका मतलब ये रिएक्शन हमारी क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो पहली बात तो प्रूफ हो गई। दूसरी बात क्या है, इसमें हीट भी निकल रही, इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, तो ये भी पूछा गया था, एक्सोथर्मिक। अभी आपको बताएं, ये सीबीएसई बोर्ड ने आपके क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है कि एक एक्स नाम का कोई कंपाउंड है जिसको जब हम वाटर में मिलाते हैं तो वाई नाम का न्यू कंपाउंड बनाता है, और जो वाई नाम का न्यू कंपाउंड है उसका यूज़ हम करते हैं वाइट वॉशिंग में, समझिएगा, वाल की वाइट वॉशिंग में करते हैं। तो आपको ये बताना है कि वो एक्स और वाई क्या है, और ये पूछा था उसने एक बार, समझिएगा, उसने कहा कि कोई एक्स नाम का कंपाउंड है, उसको पानी में मिलाया तो जो कंपाउंड बना उसको हम लोग वाइट वॉशिंग में यूज़ करते, दीवार की सफ़ेदी करने में। तो आप एक्स और वाई को बताइए। दूसरा उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा कि आफ्टर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल व्हेन 2 or 3 days spent are finished then wall will be shiny, more shiny, why? उन्होंने पूछा था जब हम दीवार की सफ़ेदी जिस दिन करते हैं ना, अगर मौसम में नमी है तो शाइनिंग तुरंत नहीं आती, 2-3 घंटे बाद आती, 2-3 दिन बाद आती है, और अगर हॉट डे है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप है, तो 2-3 घंटे बाद आती है। तो ऐसा क्या होता है, एक्चुअली उसमें उन्होंने बोला था कि केमिकल रिएक्शन भी बताइए जो होती है। तो चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं और इस पर भी बात कर लेते हैं, सारी कहानी यहीं से शुरुआत होती है सारी कहानी की। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको हम इरेज करते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। आप बिल्कुल हताश मत होइएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। ये क्वेश्चन जो है ना सब के सब सीबीएसई बोर्ड के, इसलिए मैंने सोचा कि रिवीजन में करा देते हैं, क्योंकि जब अब क्लास चलती है तो भाई साहब कुछ अलग ही तरीका होता है, क्योंकि वहाँ पे सिलेबस खींचना ये है, लेकिन रिवीजन में तो हम फ्री हैं। चलिए इस रिएक्शन का ही यूज़ करेंगे। तो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था, अगर आपने चाहा तो वीडियो को इस पॉज करके आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। मैंने बोल दिया था कि ये कंपाउंड था, क्या था, एक्स था, जिसको हमने क्या किया, वाटर में मिक्स किया, एक्स कंपाउंड मिक्स्ड इन वाटर and form compound Y, which is used in whitewashing of wall, then find compound X and Y। ठीक है, अब इसी में बढ़ाना चाहें तो अगर हम वाइट वॉश करते हैं तो क्या होता है कि आफ्टर वाइट वॉशिंग इट टेक 2 or 3 days फॉर शाइनी सरफेस, सो वाई एंड आल्सो राइट केमिकल रिएक्शन ना। तो चलिए पहले इतना ही करते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन कर लेंगे तो क्या पता आप बेहोश हो जाए। एक कंपाउंड कोई था एक्स कंपाउंड क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक्स था। जब इसको हमने किसमें मिला दिया था, वाटर में, तो इन्होंने बना लिया कंपाउंड वाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये कंपाउंड एक्स था, ये कंपाउंड वाई है। इसका नाम आपने देखा था क्या था, क्विक लाइम, और इसका क्या नाम था, स्लैग्ड लाइम। कभी कभी तो ऐसे कॉमन नेम से पूछ लेते, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, तो यहाँ तक आपका आंसर आ गया। एक्स कंपाउंड था जिसमें हमने वाटर मिलाया था, और
एक्स में वाटर मिलाने के बाद वाई बना था, जिसका यूज़ हमने कहाँ किया था, वाइट वॉशिंग में। तो ये कंपाउंड एक्स कौन सा था, कैल्शियम ऑक्साइड। वाटर जब मिला दिया तो हमने क्या बन गया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल, वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल। ठीक है। अब देखिए यहीं से हम आपको और भी बता देते क्या होता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, वो पूछते हैं कि जो 2-3 दिन बाद हमारे बाल में शाइनिंग आती है वो क्यों आती है, उसका भी एक रीज़न होता है। उस रीज़न को भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे कि वाइट वॉशिंग के बाद शाइनिंग क्यों आती है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो हमारा कंपाउंड होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, ये जब हम वाइट वॉशिंग कर देते हैं तो पहले इसमें से क्या होगा, वाटर रिमूव होगा। जब ये वाटर रिमूव होगा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। समझिएगा, पहले क्या था, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था। क्यों, क्योंकि हमने तो उसका घोल तैयार किया था ना चूने का। तो जब ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो ये पहले वाल क्या होगी, सूखेगी। जब वाल सूखती है तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाल सूखने का मतलब क्या होगा, वाटर निकल रहा होगा। तो क्या हुआ होगा, देखिएगा ये किस में बदला होगा, कैल्शियम ऑक्साइड में फिर से। और हमारे एयर में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। और जब ये यहाँ से वाटर निकल जाता है तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करता है, तो जो कि कन्वर्ट हो जाता है फिर से CaCO3। इसका नाम जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और इसका नाम तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। एक्चुअली ये जो रिएक्शन होती है ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हमारे रिएक्टेंट 2 है, प्रोडक्ट सिंगल है। ठीक है, समझिएगा। अब ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर हो गया, लेकिन वाइट वॉशिंग क्यों चमक गई, क्यों उसमें शाइनिंग आई। तो एक्चुअली भाई साहब ने जो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब इसमें पानी होता है, वाटर होता है, जिसकी वजह से इसमें शाइनिंग बहुत कम होती है। आप ही देख लो, अगर आपके कपड़े में कोई कलर है, जब पानी में डुबा देते तो उसका कलर चेंज हो जाता है, लेकिन जब सूखता तो उसका अपना रियल कलर आ जाता है। तो जो ये चूने का कलर है ना, वो रियल कलर तब आता है जब वो सूखता है। और सूखने के बाद जो एयर होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उससे रिएक्ट करके ये एक पपड़ी बनाता है। क्या बनाता है, एक स्कम बनाता है, स्कम बनाता है। स्कम किसकी होती, कभी कभी स्कम करके भी किस तरह आता है कि जो स्कम बनता है किस चीज़ का बनता है, वाइट वॉशिंग के बाद एक स्कम बन जाता है ना। आप देखिए दीपावली पर जब पेंट होती है तो उसको सैंड पेपर से पेंटर क्या करता है, पहले छुड़ाता है। वो स्कम किसका होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो यही चीज़ वहाँ पर होती है, ये स्कम बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और यही स्कम क्या करता है, चमक क्रिएट करता है। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका क्या रीज़न था। और इस पे कम से कम 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आते, तो आप इसे गलत नहीं करेंगे। चलिए कुछ और भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। और हाँ, जैसे ही आपका रिवीजन 3rd के बाद 4th ख़त्म होगा, फिर आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, और बहुत ही मज़ा आने वाला। वो टेस्ट MCQ टाइप का होगा, लेकिन बिना पेन कॉपी के नहीं लगेगा। मतलब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी आप ऑप्शन कर पाएंगे। इस बार नहीं तो अगली बार आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। एक बार आपको और चांस देते हैं तुक्का लगाने का, अदरवाइज़ आप फेल हो जाओगे। तो चलिए, और वो क्वेश्चन जितने भी होंगे कहीं से कॉपीराइट नहीं होंगे कि आप कहीं से डाउट नेट या कहीं और डाल दो। मैं क्वेश्चन खुद से आप क्रिएट करूँगा, ताकि आप डाउट नेट नहीं किसी नेट में डालो तो आए ना, जब तक कि आप अपनी खोपड़ी वाली नेट का इस्तेमाल ना करो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते, ये भी CBSE बोर्ड का क्वेश्चन है। डाइजेशन ऑफ फूड इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, प्रूफ इट। कह रहा है कि जो हमारे शरीर में खाने का पाचन होता है वो कैसा है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको प्रूफ कीजिए। एक्चुअली जब हमारे खाने का डाइजेशन होता है तो हमारा खाना होता है ग्लूकोज के फॉर्म में। जब आफ्टर फाइनल स्टेज क्या होता है, सब कुछ हमारा जो फूड मटेरियल होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो वो ग्लूकोज डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं किया जाता हमारी बॉडी के सेल के द्वारा। तो उसमें क्या होता है, उस ग्लूकोज को हम लोग करते हैं क्या, जलाते हैं। जब उसे हम लोग जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और क्या बनेगा, वाटर निकलेगी, साथ में हीट निकलेगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग उसको भी कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या होता है। आपको ग्लूकोज का फार्मूला तो पता होगा, C6H12 and O6। ठीक है, C6H12 and O6।
ये भाई साहब क्या है आपका, ग्लूकोज है, ग्लूकोज। ये हमारे डाइजेशन का फाइनल स्टेज है, मतलब कि कुछ भी हम खाएंगे तो लास्ट स्टेप में ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। अगर आपने ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ा होगा तो बायोलॉजी पोर्शन में, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिएगा, नहीं अगर आता तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बायोलॉजी पे भी बना दूंगा, ऐसा नहीं कि वीडियोस पे नहीं बना सकता। देखिए भाई साहब ये ग्लूकोज है। अगर आपको पिछली कहानी कुछ भी याद हो, अगर कोई चीज़ जलाई जाएगी तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन क्या होता है, 6O2। उसको जलाने के लिए तो हमें देना ही पड़ेगा ना 6O2। अगर आपको 6O2 7O2 कितना देना, बैलेंस करना तो आप कर लीजिएगा, अभी मुझे बैलेंस नहीं करना है, मैं ऐसे ही लिखता हूँ। चलिए ये ग्लूकोज था। जलने के बाद आपको पता अगर कोई भी चीज़ चलेगा तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। और हमने बताया था कितना CO2 बनेगा, तो ये बता, कंबशन रिएक्शन याद कर लो, कितने यहाँ कार्बन उतने ही आप CO2 निकाल देना। फिर आप क्या निकालेंगे, प्लस में वाटर निकालेंगे। अब वाटर कितने निकालेंगे देख लेना, यहाँ पे कितना है 12, उसका आधा बोला था निकाल लेना, क्योंकि ये H हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे क्या है, मालिक्यूल। अब हमें क्या करना था, चेक करना था बैलेंस है कि नहीं। कार्बन 6 बैलेंस है। ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और ये 6 18, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ 6 ऑक्सीजन है। तो कितने चाहिए, 12 और चाहिए, 6 दूनी 12। अभी आप हाइड्रोजन चेक कर लो, हाइड्रोजन 12 है, 6 दूनी 12 है, ठीक है। ये रिएक्शन बैलेंस है। और ये रिएक्शन क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि ये कैसी रिएक्शन है, ये है कंबशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे हीट क्या होगी, रिलीज होगी। अगर आपको यकीन ना हो तो आपको एक छोटा सा डेमो देते हैं। जब आप दौड़ते हैं या कोई आप मेहनत का काम करते हैं, आपकी शरीर गर्म होती है कि नहीं, होती है। पर क्यों, जब आप कोई वर्क करते हैं आपकी बॉडी के सेल को चाहिए होती है एनर्जी, और वो एनर्जी कैसे मिलती है, तो ग्लूकोज को ब्रेक करके मिलती है। आपने सुना होगा कि जब आप कोई अच्छा सा काम करते हैं तो आपकी बॉडी की मसल्स में पेन होता है ना, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हो जाता है फॉर्मिक एसिड या फिर अल्कोहल का डिकम्पोजिशन। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपने कितना पढ़ा, मैं उतना नहीं जानता हूँ लेकिन बताना नहीं चाहता। मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। ये ग्लूकोज था, हमने इसको कंबशन किया, कंबशन के बाद क्या मिली, एनर्जी मिली। अगर एनर्जी निकल रही तो रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। यही वहाँ पे प्रूफ करना था। और वो क्या करते हैं, अधिकतर बार में वो पूछ लेते हैं कि रिएक्शन लिखिए, क्या लिखिए, रिएक्शन लिखिए। और कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछता है कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। इसका भी आंसर क्या होगा, तो नेचुरल गैस का मतलब क्या होता है, मीथेन। अगर भाई साहब आप मीथेन को जला देंगे तो क्या बनेगा, वही पुरानी कहानी, कितने कार्बन, जितने कार्बन उतने CO2, फिर कितने हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन उसका आधा वाटर निकाल दीजिएगा। तो वहाँ पे 4 थे, यहाँ पे क्या निकल जाएंगे, 2H2O। अब हम काउंट करेंगे ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 4, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 2। तो ये क्या रिएक्शन, ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं भाई साहब, मीथेन गैस है। इसको नेचुरल गैस भी बोलते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं। एक बार तो इसका दूसरा नाम पूछा था, इसका मार्स गैस नाम था, तो पूछा था ये कौन सी ऐसी गैस है जिसको मार्स गैस बोलते हैं। अच्छा, मार्स गैस को बोलते क्यों, एक्चुअली ये ना दलदले प्लेस पे पाए जाते हैं, जो दलदल होता है ना, तो इसीलिए मार्स मीन्स क्या होता है, दलदल होता, तो इसलिए इसका नाम क्या है, मार्स गैस होता है। नेचुरल गैस क्या है, जो वनस्पतियाँ हमारी पृथ्वी में दब जाती हैं नेचुरल डिजास्टर की वजह से, भूकंप आया या फिर कोई और आपदा आई, तो फिर जो डिकम्पोज होकर गैस बनाती है ना, यही होता है नेचुरल गैस, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज़ भी करते कई जगहों पर। तो अगले टॉपिक में जब अगला कॉन्सेप्ट आएगा तो बात करेंगे कहाँ यूज़ करते हैं। तो फिलहाल आज के टॉपिक में इतना ही था। फिर एक रिएक्शन और बचती है जो कि हमारी सिंपल से रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन थी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने तो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया, अब हमें जो पढ़नी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इस पर क्वेश्चन में जितने भी बनने वाले सब दूंगा, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आप कमेंट में लिखिएगा, उसके ऊपर एक वीडियो बना के सलूशन आपको दिया जाएगा। ये नहीं कि हमने आपको ये पढ़ा दिया तो फिर आपको सलूशन नहीं दूंगा। भाई साहब लॉकडाउन हो या अनलॉक मुझे उससे कोई मतलब नहीं, पर अपनी पढ़ाई कभी भी लॉक नहीं होगी। अगर आप साथ दे रहे हैं तो उम्मीद करिए कि आपकी केमिस्ट्री 7 से 8 मिनट में पूरी की पूरी बोर्ड एग्जाम की सॉल्व हो जाएगी, अधिकतम 8 मिनट लगेगा, ठीक है। चलिए एक रिएक्शन हम लोग लेते हैं और उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो कराते हैं। हमने पहले ही बता दिया था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है सच टाइप ऑफ रिएक्शन
इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इनटू मोर देन 2 प्रोडक्ट। कोई एक चीज़ है उसको आप तोड़ डालिए उसके कंपोनेंट्स में, उसे क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये भी बता दिया था डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती, क्योंकि अगर कुछ लोग हैं भाई साहब आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है, उन्हें तोड़ने के लिए आपको रुपए पैसे खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा करने का मतलब उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, तब वो आपकी पक्ष में आएगा। तो ये ध्यान देना कि जब भी आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, कहीं पे आप विस्फोट करना चाहते हैं तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। इट मीन्स ये कैसी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये भी पूछा जाता है कभी कभी। तो इसमें एक जो एक रिएक्शन बहुत ही फेमस रिएक्शन है, ये तो बहुत बार फिल इन द ब्लैंक्स में पूछी गई है। तो चलिए बात कर लेते उस रिएक्शन की, ठीक है। हम लोग बात करते हैं फेरस सल्फेट की। क्या है, फेरस सल्फेट, FeSO4। FeSO4 है, इसके जब हम 2 मोल को लेकर के हीट करते हैं, हीट करने का मतलब आप समझ गए होंगे, हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी देने का मतलब कैसा हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यही जो आपकी रिएक्शन, आप इससे हम तो कहेंगे रट लीजिए भाई साहब, ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये क्या है, इसको कहते हैं फेरस सल्फेट। फेरस, बच्चे बहुत बार फार्मूले से कंफ्यूज रहते हैं, तो ये फेरस सल्फेट है, ठीक है, ये आपका क्या है, फेरस सल्फेट। अब जब इसको हम लोग हीट करते तो ये टूट जाता है, Fe2O3, इसको हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। अच्छा, कभी कभी बच्चे पूछते हैं सर ये फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, मतलब ये आयरन का ऑक्साइड है, और आपने देखा होगा एक प्रकार का ऑक्साइड ये बनाता और Fe3O4 टाइप का बनाता, जब आपने रस्टिंग पढ़ी थी ना। तो अभी उस पर हम नहीं बात कर रहे हैं, समय आने पे करेंगे भी। तो ये देखिए आपका क्या है, आयरन का ऑक्साइड बना। ये तो हमारा पहला प्रोडक्ट बना, और भी बनता है क्या, SO3, और दूसरा क्या बनता है, SO2। ये वाइस हमारा बनता है सॉलिड फॉर्म में, और ये दोनों बनते हैं गैस फॉर्म में। एक बार तो इनका स्टेट बोर्ड ने पूछ लिया था किस स्टेट में बनते हैं भाई साहब, SO2 SO3, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैस हैं, जबकि फेरिक ऑक्साइड क्या है, ये हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है। चलिए देखते हैं क्यों ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। रिएक्टेंट कितना था, सिंगल था, ब्रेक होके कितने बन गए, 3। तो जब भाई साहब टूट रहे हैं तो क्या होगा, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही होगा। दूसरी बात क्या है, हीट दी गई तब टूटा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, बहुत अच्छा सा एग्जांपल। ये भी एग्जांपल बहुत बार पूछा गया है, कैल्शियम कार्बोनेट। वो पूछते व्हाट हैपन व्हेन वी हीट कैल्शियम कार्बोनेट इन ओपन। तो भाई साहब जब हम इसको हीट करते हैं, हीट का सिंबल चाहे आप सिंबल लिखिए चाहे आप हीट लिखिए, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लिखते हैं। जब आप इसे हीट करते हैं ये ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या था एक्चुअली में, कैल्शियम कार्बोनेट था। अगर आपको ध्यान, हमने अभी बताया अगले रिएक्शन में, इसी का क्या बना था, इसका पपड़ी बनी थी वाल पे, जिससे हमारी वाल कैसी हो गई थी, शाइनी शाइनी। तो ये चीज़ होती है कैल्शियम कार्बोनेट की स्कम, जो हमारी वाइट वॉशिंग के बाद वाल पे 2-3 दिन बाद क्रिएट होती है, जिससे शाइनिंग आती। और इसको जब हम लोग हीट कर देंगे तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब आप इसे जला दीजिए, जलाने के बाद ये आपको मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी उससे खटाक से। तो ठीक है, ये भी रिएक्शन पूछा गया था। ये कैसे रिएक्शन भाई साहब, ये भी डिकम्पोजिशन है। क्यों, रिएक्टेंट कैसा है, सिंगल है, और ये टूट किस में रहा है, तो ये भाई साहब 2 लोगों में टूट रहा है। इसका मतलब इसके जो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट हैं एक से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल छोटा सा, चलिए FeSO4.7H2O। ये भी रिएक्शन एक बार पूछा था, क्या होता है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स कुछ भी नहीं था, ये डॉट हटाइए सीधा प्लस लगा के लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पे हीट देना पड़ेगा तभी ये पानी आपका निकलेगा, प्लस 7H2O। अगर आपको पीओपी और जिप्सम वाली रिएक्शन याद हो, उसमें भी आपका क्या था, 1.5 मॉलिक्यूल वाटर के जो थे क्या रहे थे, निकल रहे थे ना, याद है आपको। तो आप वहाँ के वाटर मॉलिक्यूल को निकालेंगे तो वो टूट जा रहा था 2 प्रोडक्ट में, तो उसका मतलब वो भी क्या था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। 373 केल्विन टेम्परेचर याद हो अगर आपको तो ठीक है, नहीं तो पिछली वीडियो देखिए, ठीक है। ये सारे जो रिएक्शंस होते हैं किसके हैं,
ये सारे के सारे रिएक्शन हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। एक इसमें और आता है रिएक्शन, चलिए ये भी बहुत फेमस रिएक्शन है। ये रिएक्शन में कलर पूछा गया था, तो कलर किसका होता है ये पूछा गया था। चलिए इसको मिटा के दिखाते हैं आपको। और ये रिएक्शन जो होती है ना ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए भी यूज़ होती है। अब जिस रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। ये जो रिएक्शन होती है हमारी सिल्वर क्लोराइड की होती है, सिल्वर ब्रोमाइड की होती है। और ये रिएक्शन हमारी होती कब है, ये रिएक्शन हमारी होती है सनलाइट की प्रेजेंस में। और ये कैसे होते हैं, देखिए भाई साहब, जब ये इसके साथ मिलता है ना तो ये ब्लैक ब्लैक कलर में होता है। और देखिए जब इसको हम सनलाइट देते हैं, क्या देते हैं, सन लाइट, इसको क्या देंगे, सन लाइट। अगर आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से याद हो तो ये दोनों क्या है, सेम ग्रुप के मेंबर, इसका मतलब सेम टाइप की रिएक्शन शो करेंगे। ये बनता है Ag 2Ag 2Br, सॉरी 2Ag 2Ag, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा होगा, Br2, यहाँ पे क्या बचा होगा, Cl2। तो देखिए भाई साहब Cl2, यहाँ पे क्या बचा, Br2। वो पूछते हैं ना कि क्या होता है जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में छोड़ देते हैं, तो भाई साहब इसका जो ब्लैक कलर होता है गायब हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक कलर क्या होगा, गायब हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो कलर होता है क्लोरीन की वजह से होता है, क्लोरीन की वजह से। और जब ये क्लोरीन इसका साथ छोड़ देगा तो सारी प्रॉपर्टी जो क्लोरीन की वजह से सब खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़ पूछा गया था। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज़ करते हैं, फोटोग्राफी में, ठीक है। इस रिएक्शन का यूज हम लोग करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, यही रिएक्शन ये वाली, ठीक है, Br वाली। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। एक और बचता है लेड नाइट्रेट की रिएक्शन है। जब लेड नाइट्रेट आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, चलिए देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस, इसको कहते हैं हम लोग लेड नाइट्रेट। मैं सारी रिएक्शन इसलिए करा रहा हूँ ताकि अगर बोर्ड में कोई भी आए तो आपको ये ना लगे कि सर आपने ये बताया नहीं। मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप सिर्फ रिवीजन पढ़ रहे हैं ना, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तब भी आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं ये बनता है लेड ऑक्साइड, PbO, लेड ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड बन जाता है लेड का, ठीक है। और क्या बनता है साथ में, ये बनता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड। क्या बनेगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा। कितना बनेगा, 2 बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन का क्या मॉलिक्यूल था, क्या था हमारे पास, 2 था। देखिए Na2। अब देखते रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। तो हमारा Pb सिंगल था, Pb सिंगल है। O कितना था हमारे पास, 6 टाइम था। तो यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, बराबर है। यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या है, 6 है। हमें लगता है हमारा ऑक्सीजन इक्वल नहीं है, तो हमारा ऑक्सीजन इक्वल नहीं होगा तो हम क्या कर लेंगे, सीधा सीधा हम इसके 2 मोल ले लेते हैं। 2 मोल ले लेते हैं तब भी बराबर हो जाएगा, नहीं होता तो कुछ और कर लेते हैं। यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। लेड 1 है, ऑक्सीजन 1, 2 हो गए। नाइट्रोजन 2 टाइम था तो 2 यहाँ पे हो गया 2NO2, और ऑक्सीजन हाफ था तो हमारा हाफ हो गया। इस रिएक्शन को एक तरीके से और लिखते हैं, ये आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो वाकई बहुत लंबी हो गई है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। और इस पर आधारित आपका जो टेस्ट पेपर है 20 मार्क्स का MCQ होगा, और ये सारे मार्क्स आपके ऐड किए जाएंगे आपके प्रैक्टिकल मार्क्स में। इसलिए वीडियो को ध्यान से देख के अच्छे से इसको अटेंड कीजिए। और ये जो चैप्टर वाइज आपका टेस्ट हो रहा है या फिर रिवीजन सीट वाइज, इसके भी आपको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे स्कूल ओपन होने के बाद। तो अगर आप वीडियो को अच्छे से वॉच करते तभी कर पाएंगे। और हाँ, अगर आप 1 से ज़्यादा बार टेस्ट को अटेंड करते हैं तो आपकी कॉपी ना तो पहली बार की काउंट होगी ना ही दूसरी बार की। इसलिए अच्छे से पढ़िए, पूरी वीडियो वॉच करके तब टेस्ट दीजिए। टेस्ट आपका कल या परसों होने वाला है। कल तो आपकी एक क्लास और होगी रिवीजन 4 की, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए अच्छे क्वेश्चन हम आपको लाते रहें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट अच्छे से लिखिए, लाइक भी कीजिए। तो हमें क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, तो हम और मेहनत करके आपके लिए अच्छी सी वीडियो बनाते हैं ताकि आपका सिलेक्शन, आपका जो रिज़ल्ट है उस सब में अलग हो, सबसे अलग हो, सबसे अच्छा हो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।